Okay, so let us see some remaining numericals in this chapter, that is thermal expansion. Okay, let us see the board. Okay, so we have seen this last time. Let us talk about this one. This is the 11th question from your textbook. Okay, what is the specific heat of metal if 50 calorie heat is needed to raise 6 kilogram of metal from 20 degrees Celsius to 62 degrees Celsius? Okay, so it's very simple question. We want to find out the amount of heat needed in order to increase the temperature of 6 kilogram of metal from 50 degrees Celsius, 20 degrees Celsius to 62 degrees Celsius. Okay, और ये हमको स्पेसिफिक हीट यहाँ पे पूछा है और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दिया हुआ है. तो उसके लिए हमको हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है. स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज डिफाइंड to be the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius. So therefore, we can just get this as a final formula for specific heat. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे Q कितना दिया है देखो, तो it is given to be 50 calorie here. Okay, तो 50 calorie हम यहाँ पे डाल देंगे. But then remember that the answer will be obviously in calorie per kilogram degree Celsius, because ये Q जो है वो तो कैलोरी में है, ठीक है. मास जो है वो एक्चुअली किलोग्राम में दिया हुआ है, जो कि 6 किलोग्राम दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे डिनोमिनेटर में. और चेंज इन टेम्परेचर के जगह पे हम यहाँ पे 62 माइनस 20, तो ये चेंज इन टेम्परेचर डाल देंगे, ठीक है. सो अब ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये 50 kept as it is इन अपॉन 6 इंटू, यहाँ पे ये डिफरेंस कितना बनता है देखो, तो वो बन रहा है 42, correct? So here it is going to be 42 here. Yes, and then we can just be able to work this out. तो ये तो चलो इसको हम 2 से चलो रिड्यूस कर भी सकते हैं एक्चुअली. तो यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ पे बचेगा 21, and 21 6 are 126, right? And here it is 25 kept as it is. So we have to just divide these two numbers. तो अब यहाँ पे अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो उसके लिए या तो लॉग टेबल हमको चाहिए या तो फिर कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं आराम से. नॉट इन एग्जाम बट जस्ट हियर इटसेल्फ, यहाँ पे जस्ट हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे. और जस्ट यू हैव एनी कैलकुलेटर, यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज द रेशियो? नो डाउट इट विल कम आउट टू बी, अभी देखो अगर 125 अपॉन 125 भी अगर करते हो तो भी कितना आएगा, 1/5 तो आ ही जाएगा. और 1/5 का मतलब 0.2 हुआ करता है, तो इसलिए 0.2 के आसपास आंसर होना चाहिए, विच इज ऑलरेडी देयर 0.198, मतलब वो ऑलमोस्ट 2 ही हो गया. तो लेट अस सी दिस 25 डिवाइडेड बाय 126, which actually comes up to be 0.198, right? Very good. Okay, so this is actually going to be 0.198. Okay, but as I have just told, the unit will be calorie per kilogram degree Celsius or Kelvin, we can say. So this is the value of specific heat which is actually required here. Okay, जो हमको निकालना था. Yes. Now let us see the next question. The rate of flow of heat through a copper rod with the temperature difference 30 degrees Celsius is 1500 calorie per second. Okay, so rate of flow of heat through the rod is given here. Find the thermal resistance of the copper. Okay, अभी देखो कोई भी हमने अभी ऑलरेडी देखा है कि किसी भी रॉड के अंदर, ये सपोज एक रॉड है और इसमें से अगर सपोज हीट फ्लो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सपोज, so the rate of heat flow is denoted by P, and it depends on the different factors which you already seen. It depends on the area of cross section and the temperature difference
that is delta t, and also it depends on the length inversely, and the constant of proportionality here is denoted by k here, right? So इससे हमको मिलता है p is equal to k a upon l into delta t. And as I have just told that this formula is very similar to Ohm's law. In fact, इसको अगर हम थोड़ा rearrange करके लिखेंगे इस तरह से, delta t is equal to L upon Ka, and that is multiplied with P. Okay, ऐसा अगर इसको लिख देंगे तो this becomes very similar to our Ohm's law, electricity, that is V is equal to R into I, correct है? तो यही हमको मिलता है Ohm's law, that is V is equal to Ri, where this delta T actually plays the role of potential difference, and this rate of heat flow plays the role of electric current, which is supposed to be rate of charge flow. And this quantity L upon Ka is actually going to play the role of resistance here. So in case of this thermal resistance here, मतलब heat section के अंदर जो है, तो thermal resistance का formula क्या है? तो thermal resistance will actually be equal to ये जो इनको मिलता है L upon Ka, ये मिलता है हमारा फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस. बट हियर द प्रॉब्लम इज दैट ना L दिया है, ना A दिया है, ना ही K दिया है. सो वी कैन जस्ट इमेजिन दिस फॉर्मूला मींस द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल रेजिस्टेंस टू बी सिंपली, अगर यहाँ पे इस पूरे क्वांटिटी के बदले अगर हम R डाल देंगे, थर्मल रेजिस्टेंस अगर डाल देंगे, तो कैन वी राइट दैट दिस डेल्टा T इज एक्चुअली इक्वल टू RT इनटू P, करेक्ट है? तो RT का और एक फॉर्मूला हमको मिल जाता है, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल जाता है, डेल्टा T अपॉन P. दैट मींस द चेंज इन टेम्परेचर अपॉन द थर्मल हीट rate of heat flow. Okay, so delta T upon P, this is another formula for thermal resistance, we can see. If we use it here, then we can just get it as delta T, where delta T is nothing but the 30 degrees Celsius, which is already given here in the question itself. Okay, and rate of heat flow is also given to be 1500. Okay, so if we just substitute it here, then we can just get it as 30 divided by 1500. And what about the units? This is going to be in degree Celsius upon here. This is actually going to be in calorie per second, right? So after this, we'll just get in the numerator. It will appear in degrees Celsius second per calorie. Okay, that is going to be the SI unit of thermal resistance. Here it should be per calorie. And बाकी ये जो इनका डिवीजन जो है वो तो हम कर सकते हैं आराम से. ये 0 तो 1 कैंसिल हो जाएगा नो डाउट, और बाकी ये 3 1s are 3 5s are and 0 extra as it is. So it will become 1 upon 50 actually. But as we already know that is 1 upon 50 means 0.02, right? So we can just get the thermal resistance to be simply equal to 0.02 degrees Celsius second per calorie. I will repeat again, this calorie यहाँ पे per calorie होना चाहिए. जस्ट जबकि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डिग्री सेल्सियस कैलोरी दिया हुआ है, तो वो इनटू कैलोरी नहीं है, पर कैलोरी है, because calorie will be there in the denominator. Okay, so here this is the all about the thermal resistance. We have found it out. Okay, let us see the next question. Yes, find the temperature difference between the two sides of a steel plate which is 4 centimeter thick when heat is transmitted through it at the rate of 400 kilocalorie per minute per square meter at steady state. Okay, so thermal conductivity of steel is given here. Yes, so consider this plate here. तो ये जो प्लेट है वो हम इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं आराम से. Suppose this is the plate.
Okay. Yes, this is going to be actually the plate. यस, ओके। सो यहाँ पे अभी इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये जो है, ये साइड एक्चुअली 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर अभी एरिया तो दिया नहीं है, बट इट इज गिवन दैट द हीट फ्लोज एट द रेट ऑफ 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो दिया हुआ है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी। P इज इक्वल टू एरिया इंटू चेंज इन के ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो तो सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पे लेकिन जब उन्होंने दिया हुआ है कि द रेट ऑफ हीट फ्लो इज 400 किलो कैलोरी पर मिनट, तो ये पर मिनट मतलब पर यूनिट टाइम हो गया, नो डाउट। लेकिन पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको इस एरिया को नीचे लेके जाना पड़ेगा, इधर डिनोमिनेटर के अंदर लेके जाना पड़ेगा, जो वो बनेगा फिर P, that is rate of heat flow per unit area will actually be simply equal to K upon L into delta T। ओके, ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे P अपॉन A जो है वही रेडीमेड दिया हुआ है। ठीक है, P का मतलब होता है रेट ऑफ हीट फ्लो विच इज मेजर्ड इन किलो कैलोरी पर मिनट। और चलो ठीक है, मतलब हीट पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर भी दिया हुआ है। तो पर स्क्वायर मीटर का मतलब ये हो गया कि वो पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। तो इसलिए रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया इज ऑलरेडी गिवन टू बी 400 किलो कैलोरी पर पर मिनट एंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सॉरी पर स्क्वायर मीटर, मतलब ये मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ पे। तो मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि वो एरिया का यूनिट है। ठीक है, तो ये P अपॉन ए का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे इधर इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे। और एट द सेम टाइम थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट है जो कि किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सेकेंड में है करके हमको फिर ये मिनट्स में से कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। सो वी कैन जस्ट एक्सप्रेस दिस P अपॉन A इन टर्म्स ऑफ तो 400 किलो कैलोरी एज इट इज एंड अपॉन ये मिनट के बदले आ जाएगा 60 सेकेंड्स। ओके, एंड मीटर स्क्वायर केप्ट एज इट इज अगेन, सो दैट दिस 60 विल जस्ट डिवाइड दिस 400। तो इस 60 से अगर इस 400 को डिवाइड कर देंगे तो जीरो तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। दिस जीरो एंड जीरो गेट्स कैंसल्ड एंड हियर इट विल बी 2 से अगर रिड्यूस करेंगे उसको तो 2 3 जा एंड हियर इट इज गोइंग टू बी 2 2 जा एंड 0 जा, सो मतलब 20 बन जाएगा वो ऊपर न्यूमरेटर में। So we can just express that this P by A here is actually going to be 20 by 3 and then it will be in kilocalorie per meter square second। ओके, ये हमको मिलता है P अपॉन A का वैल्यू, जो कि अभी यहाँ पे हमको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, सो इफ यू जस्ट रिप्लेस इट हियर इन दिस इक्वेशन नंबर 1, suppose that this is equation number 1, so put this value in equation number 1 so that we get this 20 by 3 इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना है, देखो ये के का वैल्यू है, देखो इधर
0.026. Okay, so this is 0.026. No doubt it is given in standard unit only. That is to be divided by, sorry, multiplied by area नहीं, divided by length. अभी लेंथ कितना है, देखो इस मेटल प्लेट का जो जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन का लेंथ हम कंसीडर करते हैं, जो कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो 4 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे डालना होगा. ओके, सो इफ यू जस्ट पुट दिस 4 सेंटीमीटर हियर in the denominator, then but just don't forget to convert it into meter. Okay, so 4 centimeter का मतलब होगा 10 raised to 4 into 10 raised to minus 2 meter, and that is multiplied with change in temperature. So जो टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, ओके, वो तो हमको निकालना है. फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द टेम्परेचर डिफरेंस ओनली. So just keep this temperature difference delta T as it is, and let us try to find it out. So just take this 4 into 10 minus 2 in that side in the numerator, and this 0.026 will be transferred into the denominator on the other side, so that we can get this 420 into 4 into 10 raised to minus 2 divided by 3 into 0.026, and that is actually going to be the change in temperature, which can be found out easily by using either log table or just calculator. First of all, just check okay, so here it will be actually 80. We can write it as 80 into 10 raised to minus 2, तो मतलब वो बन गया 0.80, करेक्ट है. और डिनोमिनेटर में 3 into 0.026 कितना बनता है, 26 3s are 78, right? So we can just write this as 0.078. Okay, so if you just shift the decimal point 3 digits on the right side, then we can be able to get this in the next step, that is 800 upon 78. Okay, 800 upon 78, so that we can just find it out using log tables now. तो 800 को पर 78 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाएगा 10.26. okay, which can also be written approximately to be 10.26 approximately. So here it is going to be 10.26 degrees Celsius or Kelvin also, क्योंकि after all it is a difference. जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, नो प्रॉब्लम. So in this way we can just get this as a change in temperature found out here. Yes, let us go to the next question. Okay, a metal sphere cools from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 6 minutes. How much time will it take to cool from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius if the room temperature is already given to be 30 degrees Celsius? Okay, so once again we can just draw a timeline in which the first point will represent this first situation, the second point will represent the second situation, और इंटरवल है यहाँ पे, सिचुएशन नहीं है, इंटरवल से. तो देखो यहाँ पे सबसे पहला टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो 80 डिग्री सेल्सियस, और ये कूल हो जाता है अप टू 60 डिग्री सेल्सियस, और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट्स रिक्वायर्ड है. तो दिस इज द 6 मिनट्स रिक्वायर्ड टू कूल द स्फीयर फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस. ओके, and now how much time will it take to cool from 60 degree Celsius to 40 degree Celsius further? Okay, तो यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस से लेके यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. Let us take this time as t here. We want to find it out. Now see, we have to use the Newton's law of cooling here in this case, which tells us simply that the rate of cooling, that means rate of fall of temperature, which is d theta by dt, that is equal to some constant k into excess temperature of the body over surroundings. That means k into theta minus theta naught. This is the Newton's law of cooling. Okay, इसमें याद रखो ठीक से, ये जो ये टर्मिनोलॉजी जो है
वो अच्छी तरह से याद रखो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर हर एक सिंबल का क्या मीनिंग है वो अच्छी तरह से याद रखो। देखो सबसे पहले हम ये बात करेंगे डी थीटा, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस डी थीटा स्टैंड्स फॉर? इट इज द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, रिमेंबर, change in temperature. Again, what is the dt means? What does this dt means? Here it is the time interval, okay, in which that change takes place. Okay, so this is the time interval. K is a constant, no doubt, but what is this theta here? Okay, the theta is going to be the temperature of the body. Okay, जो हमने कूलिंग के लिए रखा है, तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे थीटा थीटा कहलाता है। ओके, और थीटा नॉट मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। रिमेंबर, जिस सराउंडिंग में वो बॉडी हमने कूल करने के लिए रखा है तो उसको हम बोल देंगे थीटा नॉट। उसका टेम्परेचर जो है वो थीटा नॉट से डिनोट किया जाता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है, ये सब टर्म्स है, याद रखो ठीक से। ओके, तो by keeping all these things in mind, we can just try to find out this d theta, dt, k theta and theta naught इन दिस केस। अभी देखो यहाँ पे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो वी कैन जस्ट note it as a common thing for all. So theta naught is already given to be 30 degree Celsius. So yes, so this is already given. Okay, now if you just focus on the first part, suppose the part AB, okay, इसको हम बोल देंगे AB part, A से लेके B तक, इस इंटरवल के अंदर अगर फोकस करेंगे, इसको हम बोल देंगे सी चाहिए तो, ठीक है ना? तो इन द पार्ट ए बी ऑफ द टाइम, और वी कैन से इन द टाइम इंटरवल ऑफ ए बी। तो इस ए बी टाइम इंटरवल के अंदर क्या हो रहा है, देखो इससे डी थीटा का वैल्यू कितना है निकाल सकते हो आराम से। देखो डी थीटा का मतलब है द चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स द इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। So by what the temperature has been changed here. So d theta will actually be equal to 80 minus 60, which is actually going to be 20 here. Okay, 20 degree Celsius. ये बन गया हमारा theta. Okay, and what is time dt here? तो टाइम इंटरवल जो है वो यहाँ पे 6 मिनट के बराबर है, ठीक है, 6 मिनट्स। यस, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज दिस k हियर? k तो हमको पता नहीं है, चलो ठीक है। थीटा कितना है? थीटा मतलब बॉडी का टेम्परेचर। सो बॉडी का टेम्परेचर कितना हम लेंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो डिक्रीज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। इट इज 80 डिग्री सेल्सियस इन द इनिशियली एंड इट बिकम्स 60 डिग्री सेल्सियस फाइनली। सो व्हाट विल वी टेक? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन बी टेकन एज द एवरेज ऑफ द बोथ ऑफ दिस टू। तो इन दोनों का जो एवरेज है वो हमको लेना होगा एज अ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, इस पूरे ड्यूरेशन में, ये 6 मिनट्स वाले ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ना 60 डिग्री सेल्सियस होगा ना ही 80 डिग्री सेल्सियस होगा, बट वी कैन जस्ट टेक इट एज अ एवरेज ऑफ दीज टू। दैट मीन्स वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट एज 80 प्लस 60, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज। तो एवरेज अगर निकालेंगे इसका तो ये हमको मिलेगा 80 plus 60 becomes 140 and 140 divided by 2 comes out to be 70 actually, right? So 70 degrees Celsius can be taken as the temperature of the body over this whole interval of 6 minutes here. क्योंकि देखो 6 मिनट्स में से फर्स्ट हाफ में क्या होगा ना, टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, समझ सकते हो ठीक से। और 6 मिनट्स के अपर अदर हाफ में, मतलब रिमेनिंग हाफ पार्ट में क्या होगा, जो टेम्परेचर जो है वो, सॉरी, फर्स्ट हाफ में 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा और सेकंड हाफ में टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। सो एवरेज वी कैन जस्ट टेक दिस 70 डिग्री सेल्सियस एज अ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर दिस इंटरवल। ओके, सो थीटा मिल गया, और थीटा नॉट तो ऑलरेडी है हमारे पास है। सो इफ यू जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम ये सारे वैल्यूज डाल देते हैं तो देखो हमको क्या मिलेगा। Let us just take this slightly.
Okay, so if we just put all the values here in this equation number 1, तो d theta का वैल्यू ऑलरेडी हमको मिला हुआ है 20, that is to be divided by dt, मतलब टाइम इंटरवल जो कि 6 मिनट दिया हुआ है अभी, ठीक है, वो मिनट में है, तो इफ यू जस्ट कीप इट इन मिनट्स देन आंसर विल आल्सो बी इन मिनट. ओके, सो डोंट कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स. इवन अगर कन्वर्ट करेंगे भी तो भी आंसर तो वही आएगा, बट यू विल हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स एंड अगेन इट यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स बैक. So it's of waste of time. So that's why 20 by 6 as it is into is equal to k, which is not known, into theta, where theta is going to be 70 degrees Celsius here, minus theta naught, which is going to be 30 degrees Celsius already given here. So if we just use it here, then we can get this 20 by 6 is equal to k times, what is this, 70 minus 30, it becomes 40 here, right? So from this we can be able to get this value of k here, बिकॉज ये 20 जो है वो इस 40 के साथ कैंसिल होके 2 बचेगा, तो इससे हमको मिलेगा 1/6 इज इक्वल टू 2k, जिससे हमको मिलता है k इज इक्वल टू 1/12. ओके, तो ये बन गया हमारा वैल्यू k का. ठीक है, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ k, वी कैन जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट bc हियर. इस bc पार्ट पे हम फोकस करेंगे अभी. सो सी व्हाट हैपेंस इन bc. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d थीटा, कैन यू टेल मी? डी थीटा मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री सेल्सियस और ये 40 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको निकालना होगा. दैट इज गोइंग टू बी डी थीटा हियर. सो यू कैन जस्ट सबट्रैक्ट देम. 60 minus 40, which once again becomes actually 20 डिग्री सेल्सियस here. Okay, and at the same time dt कितना है, तो वो तो हमने ऑलरेडी मान के रखा है t करके. We don't know how much it is, we have to find it out. So therefore we can just denote it by t for a while. And what about this theta here? What is the temperature of the body is going to be here in this interval now? अभी इस इंटरवल के अंदर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एक्चुअली 50 आ जाएगा. दैट विल बी एक्चुअली द कंसिडर्ड एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम. सो वी कैन जस्ट कंसिडर दिस एज 60 plus 40, that is divided by 2, which gives us 100/2, which is actually going to be 50. So 50 degrees Celsius will actually be the temperature of the body itself in that time. And once we get this d theta, dt, theta, and theta naught is already there. So theta naught जो है वो तो हमको already पता है, वो surrounding का temperature, room temperature 30 degrees Celsius already दिया हुआ है. Once again, we can just put these values in equation number 1 here. Okay, this is equation number 1 here. So if we just put all these values, then we can be able to get this d theta. तो d theta का वैल्यू कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टाइम, वो हमको पता नहीं, वही निकालना है हमको यहाँ पे. तो कीप इट एज इट इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है वो हमको ऑलरेडी मिला हुआ अभी, तो k का वैल्यू 1/12 जो हम यहाँ पे डाल देंगे इधर, तो ये 1/12 बन गया इधर. यस, एंड देन वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय द डिफरेंस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट. तो अभी थीटा कितना है 50 डिग्री सेल्सियस और थीटा नॉट कितना है 30 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन जस्ट गेट दिस 50 minus 30 in the bracket, so that we can be able to get this 50 minus 30, which reduces into 20 upon t, which is equal to 1/12 into 20. Okay, तो यहाँ पे अगर ये 20 आ गया तो ये 20 और ये 20 सीधा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 1/t is equal to 1/12. Okay, and then we can be able to take the reciprocal of both of these. Yes, no, it will be actually t is equal to 12 minutes.
ओके, ये जो है यहाँ पे हमको 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज होने के टाइम तक कितना टाइम लगेगा, ये बीसी इंटरवल के अंदर का टाइम हमको पूछा है ना। ठीक है, 10 मिनट्स विल बी द रॉन्ग आंसर, 10 मिनट्स नहीं आएगा। Okay, so if we take the temperature as 80 and 60, 80 एंड 60 अगर लेंगे लेंगे तो फिर तो ये तो 6 मिनट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है ना उसके लिए। 80 से 60 टेम्परेचर फॉल होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो तो ऑलरेडी उन्होंने ही दिया हुआ है, 6 मिनट लगता है करके। ठीक है, बट उन्होंने जो पूछा है कि 60 से 40 तक टेम्परेचर डिक्रीज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम एक्चुअली 12 आता है। ठीक है, 10 मिनट जो है वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, 10 इज रॉन्ग आंसर कंप्लीटली, इट्स गोइंग टू बी 12 ओनली। ओके। और अगर स्टार्टिंग से अगर भी अगर गिनो तो भी पहले का 6 और बाद का 12, तो वो तो टोटल ऑलरेडी 18 मीटर तक मिनट तक चल जाता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, हो जाएगा। Right. ठीक है, सो दिस इज एक ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग है। इट इज नॉट 10 मिनट्स, एक्चुअली इट इज 12 मिनट्स। यस। चलो ठीक है, सो ऑल दीज आर द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आपकी तरफ से कुछ डाउट है या कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आया वगैरह ऐसा कुछ है तो चैट बॉक्स में डाल दो, यू कैन जस्ट डिस्कस इट हियर, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर के तो सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। See here, let us take this example, solved example 7.2. Okay, just read the question carefully. See here, a metal sphere cools at the rate of 1.6 degrees Celsius per minute when its temperature is 70 degrees Celsius. At what rate it will cool when its temperature is 40 degrees Celsius? The temperature of surroundings is already give, given. Okay, once again, we can just draw the timeline and just have this point to be A, this point to be B, and we can just record all the values. See, when the temperature is 70 degrees Celsius, its rate of cooling is going to be 1.6. Okay, so okay,
अभी भी है क्या, चेक करो। ओके, ठीक है। तो अभी देखो, अच्छा ये वो ब्लैक स्पॉट्स जो आप बात कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही थे या अभी आए थे एक्चुअली? ओके, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे मेटल स्फीयर कूल्स एट द रेट ऑफ 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। तो जब उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था, तब उसका रेट ऑफ कूलिंग कितना था? 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट इतना था, ठीक है। और एट व्हाट रेट इट विल कूल व्हेन इट्स टेम्परेचर विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, तो वो कितने रेट से कूल होगा? तो वो आर हमको निकालना है। लेट अस टेक दिस रेट ऑफ कूलिंग एज आर। ओके, तो अभी देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? डी थीटा बाय डी टी is going to be equal to k into theta minus theta naught, right? And theta naught is commonly given for all to be 30 degree Celsius here also. Okay, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो अभी देखो फॉर द पॉइंट ए हियर, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी कितना है? 1.6। ओके, के पता नहीं कितना है, एंड थीटा इज 70 here, and theta naught is already 30 here. Okay, so we can just solve this and write this as 1.6 is equal to 40 times of k. Okay, and from this only we can just get the value of k as 1.6 upon 40. Okay, once you get this value of k here, we can just talk about the point b now. Okay, so if we just talk about the point b here, then d theta by dt is not given here, but it should be equal to k into थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये फिर से हमको यूज करना है। सो व्हाट डी थीटा बाय डी जो है उसको हमने पकड़ लिया है आर, राइट? सो वी कैन जस्ट रिप्लेस इट बाय आर, दैट इज टू बी फाउंड आउट। एंड के जो है वो यहाँ पे हमको मिल गया है ऑलरेडी 1.6 अपॉन 40। यू कैन जस्ट रिप्लेस इट बाय दैट। सो दिस इज 1.6 अपॉन 40, and that is multiplied with theta minus theta naught, where theta is actually the body temperature, which is given to be 40 degrees Celsius, because we are focusing on the point B here. Okay, so therefore theta will be 40 minus theta naught is actually going to be the temperature of surroundings, which is commonly given to be 30 here. So therefore this 30, if we just work it out, there's 1.6 upon 40, that is to be multiplied by 40 minus 30, which actually happens to be 10 here. Okay, so that here it will be, तो ये 10 को अगर हम 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एक्चुअली 16 बन जाएगा, नीचे 40 as it is, and then we can be able to reduce this by 4, so that we can just get this 4 10s are 40 and 4 4s are 16, so that we can just get this r is equal to 4 upon 10। तो 4 upon 10 मतलब क्या हो गया? वो 0.4 हो गया। तो 0.4, but the unit is again the same, that is of this 1.6। जो 1.6 का यूनिट था वही यहाँ पे r का यूनिट रहने वाला है, क्योंकि हमने जस्ट k का वैल्यू निकाल के उसमें डाला है। तो इसलिए यहाँ पे 0.4 will be in degree Celsius per minute, no doubt. So this will be the final answer. Okay, so टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स है ऑलरेडी, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम एट योर ओन। Okay, if you have some doubt, we can just discuss it in the next lecture. So the chapter has been finished here, along with the numericals. Okay, तो numericals के साथ ये chapter खत्म हो गया है यहाँ पे। Yes, we can just start with the next chapter in the next lecture. ठीक है, तो next lecture में हम next वाला chapter शायद magnetism, ठीक है, we'll start with magnetism from 11th standard in the next lecture. Okay,
चलो